آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر اعجاز گل شکر گزار ہوں فیتھ ٹی وی کا، فیتھ ٹی وی کے CEO جناب سیسل جان برکت صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع مہیا کیا، سہولت کاری کی کہ ہم پاک کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کے آخری کلمات جو ان پہ غور کر سکیں، اس بات کو جان سکیں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کو پیار کرنے والے تو جانتے ہی تھے۔ خداوند خدا نے باغ عدن میں جب ان معصوم بے عیب بروں کی کھالیں اتار کر آدم اور حوا کو شرمندگی سے بچنے کے لیے لباس کے طور پر مہیا کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا وہ مسیح خداوند کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ خدا کا عظیم برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 11ویں باب میں یہ کچھ آیات ہیں، یہاں پہ بحث ہو رہی ہے اور لوگ فکر مند ہیں، اور اگر ہم اس کی 47 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ پس سردار کہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آدمی بہت موثر دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر امان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ خاص بات جو ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے 50 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ یہ بہت باریک اور سوچ طلب بات ہے کہ ایک آدمی ہلاک ہو، ساری قوم ہلاک نہ ہو، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں جس بات کو زور دے کر کاہن مخالفین جو ہیں، جو یسوع مسیح کو پیار نہیں، یسوع مسیح سے نفرت کرتے ہیں، ان کا سربراہ، ان کا جو بڑا پریس، جو بڑا ہیڈ ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا۔ یسوع ایک قوم کے لیے نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس آسمان کے نیچے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب خداوند خدا کی تخلیق ہیں۔ خداوند اگر کسی جگہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر میرے باتوں پر عمل کرو گے، اگر مجھے عزیز رکھتے ہو تو پھر تم میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے، تو وہاں ایک اور بات بھی کہی گئی ایک سیغے میں کہ تم میرے فرزند کہلاؤ گے۔ فرزند کہلانے کے لیے مرد و زن، بچے، اور ان کے ساتھ ایک خاص طبقہ ہے جن کو ہم اکثر جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ میری مراد میں کہنا چاہتا ہوں وہ خواجہ اسرا ہیں، جن کو خدا کہتا ہے کہ وہ میرے فرزند ہیں۔ ان کو بھی یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے جو ہے وہ اس نے جان دی ہے۔ یسوع مسیح آپ کو پیار کرتا ہے۔ اب جو خداوند یسوع مسیح کا کام ہے وہ اس نے کر لیا، اب جو میرا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر 7ویں کلمے پہ غور کریں تو 7ویں کلمے سے پہلے بھی کچھ چیزیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، تو ان پہ صلیب پہ سرگوشیوں کے عالم میں کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ سرگوشی میں اس لیے کہوں گا چونکہ مجمع بہت بڑا ہے، جلوس ہے، اور بہت زیادہ شور جو ہے وہ کیا جائے، اور شور کیا ہے؟ اس کو پھانسی دو۔ اب اس کو صلیب تو دے دیا گیا ہے، اب جو بھی ایک انسان گناہ گار انسان کے دماغ میں تشدد کے جو سری آتے تھے وہ سب آزمائے جا چکے ہیں، اور ان سب کو آزمانے کے بعد جو ہے مسیح خداوند میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ خاموشی کے عالم میں ہے۔ وہ اپنی طاقت کا اظہار بہت پہلے تو کر چکا ہے، باغ گتسمنی میں وہ پترس سے کہہ چکا ہے کہ اگر میں چاہتا تو باپ سے فرشتوں کی درخواست کر سکتا تھا، وہ میری مدد کے لیے آ سکتے، اپنی تلوار کو جو ہے وہ میان میں رکھ۔ تو ڈاکو نے جب اپنے آپ کو
खस्ता हाल किया, तौबा की, तो मेरे मालिक ने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। यहाँ जिस बात के लिए हम जमा हैं वो है 46 आयत इसी बात की। और यहाँ लिखे, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर दम दे दिया और तमाम हुआ, और हैकल का पर्दा जो वो फट गया, और दूसरी तमाम चीज़ें जो उनका जिक्र है। लेकिन ये सब कुछ इस वजह से हुआ चूँकि मसीह खुदावंद जो है वो ना सिर्फ मुझे प्यार करता है, वो आपको भी प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह पर जुल्म करने वाले जो हैं वो खुश थे। उनके वहम गुमान में ये नहीं था कि ये जो मसीह खुदावंद, जो कामलियत, जो प्यार करने वाला, जो जान देने वाला है, जो अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है, और एक बड़े इज्तिमा में जो लोगों को बता रहा है और अपने कौल के मुताबिक जान देते वक्त मसीह खुदावंद ने अपनी उस ख्वाहिश को जो बहुत पहले लोगों से वो कर चुका था, मैंने चाहा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपा लेती है, मैं तुमको भी छुपा लूँ। मसीह खुदावंद की जो पहचान गतसमनी के बाद कोई कलवरी पे हुई, वो एक माफ़ करने वाले की थी। और माफ़ भी किन को किया जा रहा है? उन लोगों को जो जनूनी हैं, जो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ और नफ़रत के साथ यीशु मसीह को तकलीफ़ दे रहे हैं। अब सूरज गुरूब हो रहा है, तीसरा पहर है, लोग देख रहे हैं कि वो बैतलहम का सितारा जिसने दुनिया को मुनव्वर किया था, जिसके वसीला लोगों ने खुशी और शादमानी का इजहार किया, अब वो सूरज गरूब हो रहा है। वो रफ्ता रफ्ता जो है वो छुपता जा रहा है। लेकिन उसके छुपने के साथ जो दूसरा इजाफा हो रहा है वो है सच्चाई, मोहब्बत और माफ़ करने वाला सूरज। अब लोग जो उस पर जुल्म कर रहे हैं, उनको उम्मीद है लालच की, उनको उम्मीद है नेक नामी की, उनको उम्मीद है कि हमने एक ऐसे बंदे के साथ जो है ये सलूक किया है। लेकिन डाकू जो है तो जुर्म पेशा, गुनहगार है, किरदार शानदार नहीं है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो है एक नई कौंपल जो है वो जन्म ले रही है। और वो कौंपल जो है वो है इतराफ़ की, वो कौंपल है इस बात की शर्मिंदगी की, वो कौंपल है पशेमानी की, और उस तकलीफ़ और तौहीन के अज़ाब से गुज़रने वाले यीशु की कदर की। यीशु मसीह मासूम था, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। मुखालफीन जो उन्होंने बरमला इस बात का इतराफ़ और इजहार किया। हेरोदिस जो वो कहता है कि मुझे पानी दे, मैं अपने हाथ साफ़ करता हूँ और मैं इस मासूम के कत्ल से अपने आप को जो है वो बरेल ज़िम्मा करार देता हूँ। लेकिन एक जनूनी तबका जो था, जो उनको भी डरा रहे थे, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे साथ ये होगा, और अपने लोगों से कह रहे थे कि एक शख्स का पूरी कौम के लिए मरना ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह के ये हालात हैं, जैसे मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, कोड़ी शफा पा रहे हैं, वो खातून जो 12 बरस से नेजस थी, नापाकी की हालत में थी, वो शफा पा रही है। जैसे भूखे और प्यासे जो उनको ज़िंदगी बख्श पानी और ज़िंदगी की रोटी दी जा रही है। इन सब बातों के बावजूद नफ़रत करने वाले जो हैं, जो शैतान के बहकावे में थे, वो बड़ी चालाकी और बड़ी तेज़ी के साथ जो है मसीह खुदावंद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। 7 का अदद जो है मेरे अजीज़ों, ये कामलियत का अदद है। 6 दिन में खुदा ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, जिसमें आदम और हवा भी शामिल थे। 7वें दिन को ख़ास बरकत अता फरमाई। और अगर इसी तरह हम यरू के हवाल को देखें, बनी इसराइल जो हैं वो मिस्र से कूच करके जंगल की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी बुड़बुड़ाते हैं, खुदावंद का इनकार करते हैं, खुदावंद उनको फिर भी प्यार करता है। तो यहाँ जो ख़ास बात है वो है कि उनसे कहा गया कि 6 दिन गश्त करो, इस शहर के चारों तरफ घूमो।
जिसमें 7 नरसिंगों का भी जिक्र है। और उन 7 नरसिंगों के साथ जो है 7 काहिन भी उनके साथ हैं, और वो 7 काहिन जो है उनको उनकी रहनुमाई फरमा रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आपने इस तरह से जो है वो करना है। लेकिन जब वो 7वां दिन होता है, यशोह 6 बाब की 6 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि 7वें दिन जैसे ही वो नरसिंगा फूंकते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, 7 काहिन उनके साथ हैं, तो वो दीवारें जो हैं वो खुद गिरना शुरू हो जाती हैं। मसीह खुदावंद का मसलूब होना सिर्फ मसीह कौम के लिए नहीं, मसीह खुदावंद का मसलूब होना हर उस जानदार के लिए है, हर उस शख्स के लिए, हर उस बेटी के लिए, हर उस बेटे के लिए जो यीशु मसीह को देख कर इस बात का इतराफ़ करता है, जो डाकू की तरह सोचता है मैं तो अपने किए का फल पा रहा हूँ, मैंने जो बुराई की है मुझे उसका सिला मिल रहा है, लेकिन ये मासूम है, ये मेरे लिए मसलूब हो रहा है, इसका खून बहाना मेरी ज़िंदगी है। ये एक ऐसा सच्चाई का सूरज है जो कहते हैं कि सब गुनाह के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आखिर में एक छोटी सी बात जो आपके सामने रखना चाहूँगा, हर ज़बान ने इस बात का इतराफ़ करना है, यीशु सूली वालिया गल तेरे ते ये मुकनी, यीशु सूली वालिया गल तेरे ते ये मुकनी, पापियां दी टोली तेरी सूली थले टुकनी। डाकू सलीब के नीचे नहीं था, वो ऊपर था, लेकिन उसको माफ़ी मिली। जुल्म करने वाले सलीब के नीचे थे, वो बाला मार रहे हैं, वो कील गाड़ रहे हैं हाथों में, वो मुंह पे थूक रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, और वो इंतहाई हर हरबा जो है तशद्दुद का आजमा रहे हैं। लेकिन मेरे खुदा ने उनके लिए भी ये कहा है, बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। 7वां कलमा माफ़ी का कलमा है, 7वां कलमा ज़िंदगी का कलमा है, 7वां कलमा दावते नजात है, 7वां कलमा मेरे और आपके लिए सोच का एक ज़रिया है, और वो मेरे और आपकी रहनुमाई फरमाता है कि हम अपनी फ़िक्रें, अपने गुनाह, और यीशु मसीह के फरमान में ये है कि तुम्हारे गुनाह किरमजी रंग के क्यों ना हो, उनको बर्फ़ की मानद वो सफ़ेद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको इस लायक करे कि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पे आए, अब यीशु मसीह ने चरनी में नहीं आना। एक बात याद रखें कि इस मसलूब होने से पहले मसीह खुदावंद पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे के मुताबिक भी वो ज़मीन पर आते थे, अपने लोगों की सलाह करते थे, अपने लोगों की मदद और रहनुमाई करते थे, अपने लोगों को हौसला देते थे। अब सलीब के बाद मसीह खुदावंद ने आराम से चुपके से नहीं आना, अब उसने बादलों पर आना है, और जिन लोगों ने अपने जामे, अपना लिबास जो है, अपने बदन जो है उसके खून से धोए हैं, पाक शराकत के ज़रिए, अशिया रुबानी के ज़रिए, उसको एतराफ़ करते हुए कि तू मेरा निजात दहिंदा है, तेरे खून में शफा है, तेरे खून में मुझे नई ज़िंदगी मिलेगी, वो उनको सफ़ेद लिबास मुहैया करेगा, और हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए बादशाही करने के लिए हालेलुया के गीत गाएंगे। वहाँ ना दुख होगा, ना रोना होगा, ना पीटना होगा, ना किसी तरह की फ़िक्र होगी, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको इस लायक करे कि इस दफ़ा का जो ईद फसा है, ईस्टर जिसको हम कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में इनकलाब का ज़रिया बने, ये हमें उस जमात में शामिल करे जिसमें वो डाकू भी हो, और आसमान की बादशाही पे हम सब पहुंचकर पूरी कुव्वत के साथ अपने एड़ी जो है उसको उठाकर एक दूसरे को हाथ के साथ इशारा करें, खुदावंद का शुक्र हो, आप मेरे साथ, हम सब खुदावंद की बादशाही में हाजिर हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।